So can somebody recap what we did yesterday? The basic ratio of the time value for the present value, future value for all of us. Great. I think we also discussed something about geometric progression also, right? Okay. दिख रहा है ना सबको स्क्रीन? अच्छा, गुड मॉर्निंग शिवेक. Good morning, sir. Where are you? Sir, in my room. So yesterday we discussed some basic concepts of time value of money, and today we'll be just brushing up another concept called geometric progression and some of the distributions which normal finance student should know. Okay. So can we start? Is somebody else? Dipanshu is coming or what? Okay. So generally, in geometric progression, we'll be using the infinite GP series in most of the cases, but in some cases, we will also use the finite series also. Now, in a geometric progression, the particular series goes like AR square, AR cube, and it can go on till infinity as well, right? So A is known as the first term, pehla term, and CR is known as the common ratio. Now, common ratio is defined as the succeeding term divided by preceding term. मतलब second term divided by first term आप कर सकते हो, या third term divided by second term कर सकते हो, but every time the common ratio will be the same. For every time the common ratio will be same. तो देखिए यहाँ पे एक मैं illustration, छोटा सा illustration यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ कि if A plus AR plus AR square plus AR cube, if these are the terms of the series, ये जो component आप देख रहे हो A, AR, तो A is considered as the first term, AR is considered as the second term, AR square is considered as the third term. तो इस तरीके से आपको infinity तक जा रहा है. And कॉमन रेशियो ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है. कॉमन रेशियो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? सक्सीडिंग टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म. सो ए आर डिवाइडेड बाय ए, दैट इज सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय द फर्स्ट टर्म. सो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म. पहले केस में देखिए आर आ रहा है. इवन अगर हम थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म भी करते हैं तब भी आर आ रहा है. So what we are observing is that whatever term we divide, the preceding term or succeeding term, the ratio will be same for all cases. Another, and from that perspective, the sum of infinite GP series can be defined as first term divided by 1 minus common ratio. First term divided by 1 minus common ratio, which is denoted as A divided by 1 minus R. Infinite ना हो तो finite होगा. हाँ, वो भी हम बताएंगे आपको. ठीक है, तो उस केस में क्या, यही जो प्रोग्रेशन है, इस प्रोग्रेशन का फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है. आइदर Rn माइनस 1 होता है डिवाइडेड बाई R माइनस 1, इस तरीके से लिखा जाएगा. और या तो एंड उसमें एक केस होता है कि वेदर आर इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1. ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में हम वही देखेंगे कि इफ, यही आपका आंसर है कि सम ऑफ फाइनाइट जीपी सीरीज, इफ यू लुक दैट इफ आर इज ग्रेटर देन 1 एंड नॉट इक्वल टू 1, देन आर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई द फर्स्ट टर्म. ये आपका फॉर्मूला है सम.
and another is what if R is, sorry, there is a typing error. If R is less than 1, if R is less than 1 in the second case, then 1 minus R to the power of n divided by 1 minus R. Let me just correct it. So this is the sum of GP series, finite GP series, when the common ratio is less than 1. ओके, तो ये कहाँ यूज होगा मैं आपको बता रहा हूं, जहां पे एन्युइटी की बात आता है, सम ऑफ रेगुलर कैश फ्लोज फॉर अ फाइनाइट और अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीरियड्स. तो यहाँ पे ये फॉर्मूलाज काम आएंगे आपका, जो आप ऑलरेडी आई थिंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऑलरेडी कवर करके आ चुके हो. एक होता है ना टर्मिनल वैल्यू, एक किसी ने एक फंड जमा किया, उससे हर साल एक स्कॉलरशिप दिया जाता है, ऐसे एग्जाम आपने शायद किए हो. ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ डिसीजंस यू कैन टेक थ्रू दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मॉडल. नाउ मूविंग अहेड, these distribution should be learned by heart by any finance student. अब इसका कुछ रेलिवेंस है, लॉजिक है. क्या लॉजिक है? जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा हमेशा ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है. बट अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तभी हम क्या पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं, तभी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हैं. यस और नो? यही तो सीखे हैं ना हम रिसर्च में. तो रिसर्च में अब अगर आप सोचो कि दो कंपनीज का कंपैरिजन आप करते हो, या टी टेस्ट डिफरेंस ऑफ टेस्ट करते हो कि वेदर दिस कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन और नॉट इन टर्म्स ऑफ पेइंग डिविडेंड. फॉर एग्जांपल, अगर स्टैटिस्टिकल एक हाइपोथेसिस लेते हो कि Infosys pays a different, you can say, dividend from TCS. Suppose this is our hypothesis. Then how will you claim that hypothesis? Yes, सार्थक, इस hypothesis को आप कैसे claim करोगे? What are the assumptions? टेस्ट ऑफ डिफरेंस जानते हो आप? टी टेस्ट होता है. तो टेस्ट ऑफ डिफरेंस में अगर ये हमारा हाइपोथेसिस रहता है कि देयर इज अ डिफरेंस इन द डिविडेंड पेइंग स्कीम ऑफ Infosys एंड देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द डिविडेंड पेइंग स्कीम ऑफ TCS एंड Infosys. तो इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या क्या assumptions लोगे? जैसे धर्णा वित्ता जी अपने प्रोजेक्ट में एक assumption शायद लेंगे इन फ्यूचर, दैट द एफिशिएंसी ऑफ the funds is different from one to another. ऐसा है ना, एक assumption हमने hypothesis draw किया है ना. ठीक है, कैसे करेंगे? हाँ, वो तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तो आपका यही होगा, इट इज नॉट इक्वल टू TCS. वेरी गुड. बट उसका assumptions क्या? पहला, डेटा शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. जो डिविडेंड है, डिविडेंड ऑफ Infosys एंड डिविडेंड ऑफ आपका TCS, दैट शुड फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोथ दिस डेटा, देन ओनली यू कैन परफॉर्म टी टेस्ट. और अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता तो कौन सा टेस्ट होता है? मार खाओगे, सब लोग मार खाओगे. नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज होता है, मैन्यू वाइटनी टेस्ट यूज होता है. तो अब एक बात बताओ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मेन assumption क्या है? मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड. दैट मींस ये जो बेसिक assumption है, दिस विल गेट वायलेट होगा ना. तो मीन, एंड इसका मतलब ही क्या है? डेटा आपका स्क्यूड है, डेटा आपका स्क्यूड है, एज सिंपल एज दैट. तो डेटा अगर स्क्यूड है, स्क्यूड डेटा के लिए कौन सा मेजर अच्छा है, मीन या मीडियन? मीडियन. एंड मीडियन मीन्स व्हाट? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. एकदम ये सारे बेसिक चीज होना चाहिए आपके टिप्स में. सिमिलरली बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. जब बाइवेरिएट मीन्स क्या? अब एक सिंगल वेरिएबल लेके आप काम नहीं कर रहे, डिविडेंड के साथ साथ क्या आप प्रॉफिटेबिलिटी को भी देख रहे हो सकता है ना. कोरिलेशन में भी आप टी टेस्ट निकालते हो, तब क्या करोगे आप? बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही फॉलो करेगा तभी तो होगा ना. सेम चीज अब सोचो, दो जगह पे प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ
उनका कैश फ्लो भी इंपॉर्टेंट मैटर करेगा या नहीं करेगा? कर सकता है। तो अब 3 वेरिएबल हो गया, सो इट कॉल्स अबाउट MVN, मल्टीवेरिएट नॉर्मेलिटी। तो मल्टीवेरिएट नॉर्मेलिटी भी आपको टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? ये assumptions है। एक छोटा सा एग्जांपल में दिखा रहा हूँ, मतलब जस्ट डिफाइन किया मैंने। नेक्स्ट, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सारे डिस्ट्रीब्यूशंस भी जरूरी है। तो थोड़ा पढ़ने की कोशिश करना। और उसका प्रॉपर्टीज क्या है कि मीन कैसे निकाला जा सकता है, इसका SD कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है? जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन क्या होता है, x बार होता है, या NP हम बोलते हैं, NP इज मीन। फिर SD क्या होता है, अंडर रूट ऑफ NPQ। वेरिएंस क्या होता है, ओनली NPQ। ये मैं बोल रहा हूं, आप लोगों की तरफ से आना चाहिए ये चीज। वेरएज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या, मीन एंड वेरिएंस इक्वल होता है, इक्वल्स टू NP होता है। अरे ये तो आप लोग बोलोगे मुझे, क्यों? क्योंकि देखो, इंश्योरेंस पॉलिसी जब आप डिजाइन करते हो तब आप देखते हो व्हाट इज द नंबर ऑफ डेथ क्लेम्स इन ईयर, तभी तो आप प्रोजेक्ट कर पाओगे ना कि आने वाले टाइम पे कितने लोग मरने वाले हैं, एंड उसके हिसाब से मुझे कितने फंड जो मैं प्रॉमिस किया था वो मुझे देना है। वो कहाँ से आओगे आप? इसी प्रोबेबिलिटी वैल्यू से आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा ना। एंड यू नो द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल नंबर विच फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? तो इसीलिए फाइनेंस में ये डिस्ट्रीब्यूशन, जस्ट मैंने आपको एनेक्डोट दे दिया। देखो टाइम नहीं है, आप लोग अब टाटा बाय बाय बोलने वाले हो मुझे बहुत जल्दी, तो उससे पहले ही मैं ये सारे चीज आपको थोड़ा सा देने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ कमिंग टू आवर ओरिजिनल डिस्कशंस, अब पहला दिन ऑफिशियली हम लोग अब क्या कॉर्पोरेट वैल्यूएशन शुरू करने जा रहे हैं। Now the course outline will be, firstly we will be discussing what is the context of valuation, why we need to value, right? We need to value because there are certain decisions, say for example from an investor's point of view, whether the stock is overvalued or undervalued. Second, whether we should go for the acquisition strategy or not. We should acquire the firm, whether our value will increase after the acquisition or decrease after the acquisition. So these important critical decision making points can be achieved only through these valuation models. Again, we will also discuss the various approaches to valuation. One is stock and debt approach to valuation. Another is enterprise related, you can say multiple related valuation techniques. So we will discuss these in detail. So let us first start that why we need to study valuation, right? First is raising capital. इसीलिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि आप मिक्स कितना रखोगे, इक्विटी से कितना उठाओगे, डेट से कितना उठाओगे। ये आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़े हो ना, एक टॉपिक था आप लोगों का, कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। तो कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में क्या आपको बोला जाता था कि एक कंपनी 5 लाख रुपया उठाना चाहता है मार्केट से, 100% इक्विटी अगर लेता है तो क्या होगा, अगर मान लो कि 50% इक्विटी 50% प्रेफरेंस होगा तो क्या होगा, एंड 30% इक्विटी 20% प्रेफरेंस, एंड फिर बाकी पोर्शन अगर डेप्ट होता तो क्या होता, हमारा वैल्यू ऑफ द फर्म। तो हर केस में हम लोग क्या निकालते थे, EPS निकालते थे लास्ट में। एंड जिस पर्टिकुलर कैपिटल स्ट्रक्चर पॉलिसी में हमारा EPS हाईएस्ट होता था, दैट पॉलिसी वाज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंसिंग। अब देखो कॉम्प्लेक्सिटी कितना बढ़ जाता है जब रियल टाइम आप लोग EY या डेलॉयट इन सब या कोई इक्विटी रिसर्च फर्म लाइक बजाज फाइनेंस में काम करोगे, तो एक होता है ऑफर फॉर सेल मेथड ऑफ इक्विटी, एक होता है IPO मेथड, एक होता है वेंचर कैपिटल। अब ये भी मेथड ऑफ फाइनेंसिंग है ना, तो उसका कॉस्ट कितना है, और इस तरीके से अगर मैं फाइनेंसिंग करता हूं तो किसमें मेरा EPS या मल्टीपल्स अच्छा फिगर शो करेगा। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है।
सो यहाँ पे पिच रिपोर्ट एक्चुअली जो पिच रिपोर्ट होता है, तो पिच रिपोर्ट में आपको क्या एक्चुअली कंपनी डिजायर करता है आपसे, आप इस वेरियस पैरामीटर्स को कंसीडर करते हुए एक मॉडल बनाओ एंड मॉडल बना के दिखाओ कि आईपीओ अगर ना करके अगर हम ये ऑल्टरनेटिव मेथड यूज करते थे तो हमारा क्या वैल्यू होता कंपनी का, अगर हम ये करते तो क्या वैल्यू होता। यही एक्चुअली आपका काम है और इसी के बेसिस पे आपका पैकेज डिसाइड होता है इंडस्ट्री में। नेक्स्ट, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको ओरली आई हैव ऑलरेडी नरेटेड दैट IPO is one of the major, then that is why most of the companies and even portals also give certain facts and figures about pre-IPO valuation and post-IPO valuation of the company or the price of the shares. Next, in acquisitions also, what do you mean by the term acquisition, by the way? When you acquire new business, Partially, fully, what is the legal definition of acquisition? when you acquire more than 50% stake in the company. But what is the legal definition? Acquiring majority stake in a company. Yeah, majority stake. Yeah, I heard something about majority stake. What is that majority stake? So Any- more than 50% in some company. So that concept is known as what? Holding and subsidiary? Parent company, something like? See, acquisition can take place in different forms. One is takeover. Takeover means 100% control of ownership. Another is merger. The second case, what you told, that is of a merger. The two firms are coming together, but on a particular proportionate basis. That more than 50% is acquired by some. Then the controlling affairs are transferred to that particular firm who has a greater amount of ownership. Okay. Next is divestiture. What is divestiture? Yes, you can call it as disentanglement also. But divestiture are, yes, government क्या बोले? Only government. Why not private? Yes, PSU generally uses the term disentanglement, but in case of private firms, they use the particular term called divestiture. But meaning is more or less the same. What they try to sell off either a business or a division which is non-performing in nature, and they put the money in some other profitable business or in profitable segments. So for example, one example I like to quote is from Gillette India. Gillette India क्या, जब मार्केट में पहली बार आया था इंडिया में, तो तब क्या था कि वो लोग रेजर तो मेंस रेजर तो बनाता ही बनाता था, बट उसके साथ क्या जिलेट का एक डिओड्रेंट भी उन्होंने लॉन्च किया था. बट द डिओड्रेंट industry was so much saturated with competitors that they failed even to penetrate the market also. That product failed miserably. तो उन्होंने क्या उस particular deodorant division को बंद कर दिया. बंद करने के बाद that particular strategy is known as sell off. Okay. Divestiture भी तीन तरीके का होता है. एक है sell off, एक है spin off और एक अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, और एक particular strategy है. तो वो लोग सेल ऑफ स्ट्रेटेजी यूज किए थे. तो उसमें क्या, उस डिवीजन को टोटल सेल आउट कर दिए थे. इट्स एसेट लायबिलिटी सब कुछ लिक्विडेट हो गया था. एंड वहां से जो पैसा मिला था, उस पैसे से उन लोगों ने एक नया पर्टिकुलर डिवीजन किया. वो वुमेन रेजर्स जो है वो लॉन्च किया. जिलेट का एक वुमेन रेजर्स डिवीजन भी लॉन्च हुआ एंड दैट बिकम स्लोली प्रॉफिटेबल. ठीक है. तो दिस इज वन क्लासिक एग्जांपल ऑफ सेल ऑफ काइंड ऑफ अ डाइवर्सिटी. ठीक है. दूसरा है होता है स्पिन ऑफ होता है. स्पिन ऑफ में क्या होता है कि वो एसेट्स लायबिलिटीज को सेल नहीं करता है, बट दूसरे को वो शेयर्स को सेल ऑफ कर देते हैं. एग्जैक्टली, इक्विटी. उसे उसका नाम होता है इक्विटी कार्व आउट बोल के भी उसे पहचाना जाता है. सो इट इज जस्ट लाइक से फॉर एग्जांपल आईटीसी के कुछ ब्रांड्स है जो नॉन परफॉर्मिंग है, तो उसको आप क्या किया कि आज से दूसरे कंपनी को दे दिया और वो जो शेयर्स थे वो शेयर्स भी बेच दिए. सो दिस इज जस्ट लाइक दैट ट्रांसफरिंग द ओनरशिप फ्रॉम वन हैंड टू द अदर. राइट. नेक्स्ट इज ESOPs
ESOPs, you know, employee stock options. How these ESOPs can influence the particular firm value? Any idea? It can use the equity by. सोचो, think, give me some idea कि how ESOPs can influence the सबसे पहले तो फर्म का वैल्यू को इन्फ्लुएंस करना चाहिए ESOPs, then only the valuation को डिफर करेगा ना. कैसे होगा बताओ. Sir, IPO में I think it would matter. IPO लाते हुए. हाँ जी, थोड़ा सा तेज बोलो शिवेक. Sir, IPO लाते हुए it could matter the stock prices. कैसे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ. और IPO तो पहली बार होता है, FPO हो सकता है. IPO तो पहली बार ही होता है ना, उसके बाद तो FPO होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग होता है. तो how will it influence the valuation of the company? नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ जाएंगे, एक पॉइंट है, ठीक है. और दूसरा, ESOPs किसे दिया जाता है? एम्प्लॉइज को दिया जाता है. वेरी गुड. अगर मान लो कि CEO छोड़ के चला गया, उसके साथ ESOP भी तो ले गया ना. अब एक्सटर्नली अगर मान लो कि उसके पास ऑलमोस्ट 10% ESOPs है, तो दैट मींस ही हैज आल्सो द वोटिंग राइट्स आल्सो, राइट. इक्विटी शेयर्स ही तो होल्ड कर रहे हो वो. और मान लो कि वो अगर किसी और को वोट दे दिया तो क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो डाइल्यूट हो जाएगा ना. सो दीज ऑल फैक्टर्स विल लीड टू फर्म परफॉर्मेंस बिकॉज ही इज अ की पर्सनल. एंड की पर्सनल क्या स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेते हैं कि बिजनेस कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, प्राइस में इन्फ्लुएंस करना है या नहीं है, प्राइसिंग डिसीजन. ये सब लोग तो यही करते हैं ना, मेजर डिसीजंस यही लेते हैं. So that is why ESOPs, valuation of ESOPs is also a very major issue कि कितना परसेंटेज. एंड इसीलिए हम कंपनीज एक्ट में एक पर्टिकुलर रूल रखे हैं कि 5% से ज्यादा अगर कोई स्टेक होल्ड करता है तो उसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एक मीटिंग होना चाहिए, आइदर एट AGM और एट EOGM. एंड लास्ट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी क्या आप लोग शायद करे हो, इक्विटी वैल्यूएशन या बॉन्ड वैल्यूएशन करे हो आप लोग, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. यस, नो, कांट से. क्या किए थे? 2 स्टेज मॉडल, 3 स्टेज मॉडल, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल किए हो? अच्छा, ये सारे डिविडेंड मॉडल्स हैं. डिविडेंड से हम लोग इक्विटी शेयर प्राइस को कैलकुलेट करते हैं बैकवर्ड. नेक्स्ट, अप्रोचेस टू वैल्यूएशन. अब जब वैल्यूएशन की बात आ ही गया है तो कितने तरीके का अप्रोच है. फर्स्ट इज बुक वैल्यू अप्रोच. व्हाट डू यू मीन बाय बुक वैल्यू? फर्स्ट ऑफ ऑल, Sir, asset minus liabilities. yes, assets minus Liabilities. assets minus liabilities should be how much? बोलो, assets minus liability should be how The much? equity की book value. Equity की stock की book value आ जाएगी sir. Is equity be considered as a liability or not? Does that come under the total liability or not? Yes. So asset minus liability will be equal to 0 because both sides should balance. Yes or no? Yes sir. So total value of assets or total value of liabilities is actually the book value of the firm. ठीक है, क्योंकि इसी से क्या, एक तरफ आपका क्लेम्स है, एक तरफ क्या आपकी इन्वेस्टमेंट्स है, दोनों शुड बी ऑलवेज मैचिंग. जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है कि सपोज ₹500 मिलियन है, 500 मिलियन का एसेट्स अगर आपके पास है तो 500 मिलियन का लाइबिलिटीज भी तो आप ही के पास होगा. एंड दैट इज द टोटल वैल्यू ऑफ योर फर्म. नाउ
यही जो पर्टिकुलर वैल्यू है, बुक वैल्यू है, इट गेट्स डिस्टर्ब। अब किस किस फैक्टर्स के वजह से ये बुक वैल्यू डिस्टर्ब होता है? सपोज आपने, दिस इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, राइट? मान लेते हैं कि ये क्लासरूम एक इंडस्ट्री है, एक फॉर्म है, तो इस फॉर्म में एसेट्स क्या यूज हुआ है? ये टेबल कुर्सी, ये सारे एसेट्स। अब ये एसेट मान लो कि मैं 2020 में खरीदा था जब बैच स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे इस टेबल का कॉस्ट मान लो पर डेली कॉस्ट आ रहा है 6000 रुपये या 4000 रुपये, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे कितना होगा? 4-24,000 रुपये टेबल चेयर का कॉस्ट आ रहा है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, डू यू थिंक दैट इट विल बी द सेम कॉस्ट? No, not only depreciate, but in the market, the same book value can appreciate also due to inflation. ऐसा भी तो हो सकता है। So both depreciation effect and inflation effect will influence the valuation of this particular asset. So this is one approach. Another is the way I depreciate. मान लो कि जब नया खरीदा था तब दीमक नहीं लगा, बट दूसरे साल के बाद दीमक लगना चालू हो गया क्योंकि इस क्लासरूम को कोई यूज नहीं करता हो, तो अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन विल इंक्रीज और डिक्रीज। पहले स्ट्रेट लाइन मेथड, अब एक्सपोनेंशियल मेथड, again valuation will change. Small examples. Next is stock and debt approach. Now stock and debt approach में एग्जाम्पल थोड़ा सा स्टडी कीजिए एंड मुझे बताइए कि क्या क्या है क्या नहीं है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। Be saying that take the case of Horizon Limited as an example of stock and debt approach. On March 31st, 2021, the firm had a 1.5 billion outstanding shares at the closing price of 20 on that day. Horizon's equity had a market value of 30 billion. On March 31st, 2021, the firm also had an outstanding debt with a market value of 21 billion. Adding the market value of the equity to the market value of the debt, a total firm value of 51 billion for Horizon as on 31st March 2021. तो जैसे हम फॉर एग्जांपल कैपिटल एम्प्लॉयड एक स्टैटिस्टिक्स मेजर करते हैं अकाउंट्स में, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज व्हाट? इक्विटी प्लस डेब्ट, यही तो है। तो इक्विटी प्लस डेब्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे कितना है? 15। अब नाउ चैलेंजेस क्या आ सकता है कि इफ द स्टॉक प्राइस चेंजेस देन व्हाट विल हैपन? उस दिन तो 20 रुपया था, 20 दिन 25 रुपया हो गया, तो क्या हो गया? और दूसरा देखो फिक्स्ड है, दूसरा डेब्ट फिक्स्ड है। सो हियर वन चैलेंज अगेन इज दैट कि आफ्टर अ पीरियोडिसिटी, आफ्टर अ पीरियड, you need to value both your debt instruments as well as equity instruments to take into account the true value of the firm. तो ये डिस्क्रिपेंसीज आपको समझ में आ रहा है ना कहां कहां होगा? नेक्स्ट, ये स्टॉक एंड डेब्ट अप्रोच क्या assumptions लेता है? ये assumptions लेता है मार्केट आर एफिशिएंट, बट इन रियल वर्ल्ड इज मार्केट एफिशिएंट? इट इज नॉट एफिशिएंट, राइट? कभी अप है तो कभी डाउन है। जैसे अभी देखो प्री बजट क्या कंडीशन था, एक एक दिन में ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट्स या 3000 पॉइंट्स का डिफरेंस हम लोगों ने देखा थे। 56 में चला गया था मार्केट, आज का कंडीशन कितना है? ऑलमोस्ट 58 59 के आसपास अभी मार्केट है। क्या पता अप्रैल में और थोड़ा सा जाए, क्योंकि उसके बाद बजट रिवीजन भी होता है। नेक्स्ट अनदर थिंग इज दैट कि इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द एसेट। अब मान लो बॉन्ड
मान लो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में बॉन्ड भी आता है, ये सुन लो, बॉन्ड आता है या नहीं आता है डेप्ट इंस्ट्रूमेंट में? अच्छा, अब मान लो कि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड एंड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड दोनों ही बॉन्ड है, पीएसयू मतलब गवर्नमेंट का ही है दोनों, तो विच बॉन्ड हैज अ मच ग्रेटर वैल्यू, इंफ्रास्ट्रक्चर और द सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड? यस, शिवेक एंड दीपांशु, क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला? यस सर। पर सर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड तो एक तरह से एसेट क्लास नहीं होगी? क्यों? उसका मतलब एसेट ही नहीं हो गया सर, बिकॉज उस पे आपको एक अंडरलाइंग एसेट है, उस पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। डेट उसमें दूसरा वाला इज अ Not डेट only इंस्ट्रूमेंट it will प्रॉपर्ली। give you an interest, but it will also give you a capital gain also, right? यस Because it has an सर, intrinsic value. Now, what is again an यस सर, intrinsic value? It has an object value. Gold is what? Used for jewelry purpose, and it is a high value product, high value metal in fact. तो वो जो underlying asset है, that underlying asset itself is very costly. But infrastructure is something what is purely tangible. जो construction, it is man-made. But gold is not man-made. Gold is natural and it has a value. Are you getting my point? So that's why the sovereign gold bond will increase with the passage of time. But the infrastructure bond may or may not increase. Correct? Other approaches are, ये सारे approaches जो DCF approach यहाँ पे लिखा हुआ है, DCF approach stands for discounted cash flow approach. तो यहाँ पे सबसे पहले हम enterprise DCF मॉडल हम देखेंगे. एक्चुअली एंटरप्राइज DCF मॉडल में हम लोग फ्री कैश फ्लोज टू द फर्म ये कैलकुलेट करते हैं. क्या? FCFE, फ्री कैश फ्लोज टू द फर्म. FCF हम कैलकुलेट करते हैं, फ्री कैश फ्लोज. फ्री कैश फ्लोज कैसे कैलकुलेट होता है? अगर मान लो कि आपको मैंने एक इनकम स्टेटमेंट दे दिया और इनकम स्टेटमेंट 10 साल का दे दिया एंड मैंने बोला कि हर साल का कैश फ्लो निकालो, तो कैसे करोगे? है इनकम स्टेटमेंट से बोल रहा हूँ. इनकम स्टेटमेंट में कैश इनफ्लो माइनस आउटफ्लो कहाँ से दिखेगा आपको? कैसे कैलकुलेट करोगे? बोलो, फंडामेंटल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं. हाँ, तो क्या है फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कैश प्रॉफिट? बोलो. आप लोग करे हो, अभी ये आंसर दे दूंगा तो बोलोगे कि अरे ये तो पढ़ा हुआ था. Yes, those who are virtually connected with me. Dipanshu, Vivek. Yes, sir. Sir, cash सर flow मेरा from ध्यान नहीं है. operating. Sir, cash flow from operating income. अरे धूत तेरी, वो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट देख के पता चलेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना है. मैं पूछ रहा हूँ, इफ आई गिव यू ओनली इनकम स्टेटमेंट ऑफ द लास्ट say 5 years, so how will you calculate the free cash flow available to the firm? Okay, let me help you. नेट प्रॉफिट प्लस टैक्स. क्या? नेट प्रॉफिट प्लस टैक्स. अच्छा, उससे क्या होगा? उससे क्या होता है? हमें भी थोड़ा सिखाओ, हम भी थोड़ा सीख रहे हैं आपसे. See, this is what you need to procrastinate. ठीक है, विजुअलाइज द इनकम स्टेटमेंट. आउटकम क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट और EBIT. उसके बाद क्या होता है? लेस इंटरेस्ट, लेस टैक्सेस एंड यू कम आउट एट PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. एम आई क्लियर? तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के साथ जब आप डिप्रिसिएशन ऐड करते हो तो क्या आता है? कैश PAT आता है. आया आपके पास फ्री कैश फ्लो? देन
ये फंडामेंटल्स हैं। ये कैपिटल बजटिंग में आई होप आपने एक ARR बोल के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो ARR में कैलकुलेशन में FCF कैलकुलेशन आपको आया था। दूसरा, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आज ही जाके दोबारा देखना, क्योंकि ये यहीं से इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी यही इसी तरीके का आपका फ्री कैश फ्लो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपने एक एनालिसिस किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, EBTPS एनालिसिस किया था कैपिटल स्ट्रक्चर में, EBTPS एनालिसिस। तो EBTPS एनालिसिस में यही फ्री कैश फ्लो बनाना सिखाते हैं। देखना वो स्ट्रक्चर कैसे फॉलो होता है। सबसे पहले क्या आता है, EBITDA, अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन, ये टोटल टर्म है। वहां से क्या, सबसे पहले डिप्रिसिएशन, उसके बाद अमोर्टाइजेशन, ये दोनों चीज निकालने के बाद क्या आता है, PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेक्स्ट उसके बाद लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जैसे ही आप डिडक्ट कर देते हो तो क्या आता है, PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वहां से लेस टैक्सेस, कॉर्पोरेट टैक्सेस, आई रेफर टू कॉर्पोरेट टैक्सेस। तो वहां पे जब कॉर्पोरेट टैक्सेस आप डिडक्ट कर देते हो तो क्या आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद व्हेन यू ऐड नॉन कैश एक्सपेंसेस, I repeat, non-cash expenses, like for example, amortization is a non-cash expenses, depreciation is a non-cash expenses. When you add these things, then you get the cash profit. Even further, in some books, you will see another approach कि ये जो कैश आपने कैलकुलेट किया, जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हो तब देखना कि एक और एडजस्टमेंट आप करते हो, नेट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, उसे भी आप एडजस्ट करते हो। याद आ रहा है कुछ कैश फ्लो स्टेटमेंट का, या सब ऊपर ओवर द हेड ट्रांसमिशन हो रहा है अभी है? याद आ रहा है? सार्थक कितना शांत बैठे हो, मतलब कुछ बोलो। एग्जैक्टली, रिवाइज करना पड़ेगा ये सब्जेक्ट इसीलिए एंड में रखा जाता है ताकि आप लोग सारा कुछ वो जो प्रिलिमिनरीज है ना, एंड इसीलिए मेरा पहला ऑब्जेक्टिव ही ये था कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको थोड़ा सा टच कर ताकि आपको याद आता रहे ये सारा चीजें। नेक्स्ट, इक्विटी DCF मॉडल, ये जनरली EPS के ऊपर बेस्ड है। टोटली EPS से हम 3 मॉडल करेंगे यहाँ पे। वन इज सेकेंड स्टेज, 2 स्टेज मॉडल, ग्रोथ मॉडल, 3 स्टेज मॉडल, कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, दैट इज आल्सो नेम्ड एज गॉर्डन मॉडल। ठीक है, उसके बाद एडजस्टेड PV मॉडल, ये एक अलग है। इकोनॉमिक प्रॉफिट मॉडल, दीज आर सेपरेट मॉडल्स व्हिच वी विल डिस्कस इन डिटेल। सब में थोड़ा थोड़ा फर्क है, आपको सिर्फ वो चेंज ही नोट करना है। मोस्ट ऑफ द मॉडल्स आर विल लुक अलाइक, ओनली थोड़ा थोड़ा माइन्यूट चेंजेस है। तो बेस्ट ये होगा कि जब मैं क्लास में एक प्रॉब्लम, एक अप्रोच आपको पढ़ाऊंगा तो उसी दिन आप क्या, एक या तो एक्सेल शीट बना लीजिए या तो अपने कॉपी में, नोटबुक में ऐसे ही लैंडस्केप फॉर्मेट में आप एक कंपैरिजन टेबल बना लें कि इनमें डिफरेंस क्या है, ताकि आपके पास एक रेडी रेकॉनर रहे। जब भी इंटरव्यू इस तरीके का कोई आए तो आप उसे पढ़ के एकदम चले। क्लियर? नेक्स्ट, रिलेटिव वैल्यूएशन है। रिलेटिव वैल्यूएशन मींस कि इसका एजम्पशन ये है कि दोनों अगर एक ही तरीके का एसेट है, से फॉर एग्जांपल ये लोकल फर्नीचर के शॉप से खरीदा हूं और एक आइकिया के फर्नीचर शॉप से खरीदा हूं, तो दोनों तो टेबल ही है, दोनों सेम प्राइस होना चाहिए, बट एक्चुअली होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका क्वालिटी में डिफरेंस होता है, क्या पता उसका सर्विस डिलीवरी में डिफरेंस होता है। जैसे आइकिया का प्रोडक्ट को क्या आपको खुद इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, और या तो आपको क्या स्पेशली एक ऑर्डर रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा आइकिया का कि यू हैव टू गिव मी एन इंस्टॉलर आल्सो टू फिक्स अप द थिंग। यहाँ पे क्या आपका ऑलरेडी इंस्टॉल करके आपको देगा, राइट? तो दोनों में काफी डिफरेंस है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है
डायरेक्ट कंपैरिजन, मतलब जैसे इसका प्राइस वर्सेस उसका प्राइस। एंड दूसरा है क्या, मल्टीपल्स अप्रोच। मल्टीपल्स अप्रोच क्या है, दो तरीके का मल्टीपल्स है। एक है एंटरप्राइज मल्टीपल्स विच इज जनरली कंप्राइजिंग ऑफ प्राइस एंड सेल्स। जैसे अभी मैंने प्रॉफिट का ही कितने सारे डेफिनेशन दिया, देखो एक है ईबीडीआईटी, दूसरा क्या ईबीआईटी है ना, फिर ईबीटी, ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो बहुत सारे डेफिनेशन है। सेल्स में भी बहुत सारा डेफिनेशन है, नेट सेल्स, ग्रॉस सेल्स, है ना। इसीलिए तो आप दो मेजर्स पढ़ते हो, जीपीएम एंड एनपीएम। प्लीज